السلام علیکم۔ بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے تم سے اگلے لوگوں کو جانا، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کو جان لیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ بے شک آپ کا پروردگار تمام کو اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والے جاننے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ آپ کے پروردگار نے فرشتوں کی جماعت سے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو برابر بنا دوں اور اس میں میری روح پھونک دوں تو ان کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، تمام کے تمام فرشتوں نے مل کر کے اکٹھا سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، باری تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ابلیس نے کہا میں انسان کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جس کو آپ نے گارے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں ایسے انسان کو جس کو آپ نے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، باری تعالیٰ نے فرمایا نکل یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تو ملعون رہے گا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا اے میرے پروردگار مجھے قیامت کے دن تک، بعث بعد الموت کے دن تک مہلت دے دے۔ قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، باری تعالیٰ نے فرمایا بے شک معلوم دن کے مقررہ وقت تک تجھے مہلت ہے، یعنی قیامت تک تجھے مہلت ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، ابلیس نے کہا آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، ضرور بے ضرور میں ان کے لیے زمین بھر کی چیزوں کو مزین کروں گا، اور ضرور بے ضرور ان تمام کو میں گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر تیرے مخلص بندے ان میں سے وہ میری گمراہی کے اثر سے دور رہیں گے۔ هذا صراط قال هذا صراط علی مستقیم، باری تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا سیدھا جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر ابلیس تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں، ہاں مگر جو گمراہ بندے تیری اتباع کرے، تیرا مانے، ان پر ہی تیرا چلے گا، جو میرا مانیں گے ان پر تیرا چلے گا نہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم ان تمام کے لیے وعدے کا وقت ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے ان میں سے جانے والے لوگ متعین ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا امن و امان اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بے خوف نیڈر اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،
और जन्नतियों के दिलों से अल्लाह कीने को निकाल देंगे, भाई भाई होंगे और मसड़ियों पर आमने सामने बैठे हुए होंगे। ला यमस्सुहुम फीहा नसबुम वमा हुम मिनहा बिमुखरजिन, न उनको वहां कोई थकन पहुंचेगी और न वो लोग वहां से निकलेंगे। इन आयत बैयिनात में खुदावंद कुद्दूस अपनी कुदरत कामिला बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, वलकद अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलकद अलिमनल मुस्ताखिरीन। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और उनकी उम्मतें आई और जितनी भी मखलूक़ात पैदा हुई और क़यामत तक आने वाली तमाम तर मखलूक़ात, इन सब को अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जब खालिक अल्लाह है, जब मालिक अल्लाह है, पैदा करने वाला ही अल्लाह है, अल्लाह ही इनके हालात को बेहतर जानता है। अल्लाह का इल्म अज़ली है, अल्लाह का इल्म कदीम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक का खालिक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कम रहने को ज़्यादा रहने को अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर अल्लाह ताला ने हश्र का मसला बयान फरमाया, व इन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम, अल्लाह ताला तमाम को इकट्ठा करेगा। मक्की सूरतों में हश्र नश्र के मसाइल बयान किए हैं। एक वक्त आएगा जब दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा, सारी मखलूक इकट्ठी होकर अल्लाह के दरबार में चलेगी। जैसे जाना ज़मीन में डाला जाता है और फिर वो उग जाता है, लोग अपनी अपनी कब्रों से या जहाँ दफन किए गए हैं, जहाँ मौत हुई है, वहाँ से निकलेंगे और अल्लाह के दरबार की तरफ चलेंगे। ये अल्लाह की हिकमत और इल्म का तकादा है। अल्लाह सबका हश्र करेगा और अल्लाह ताला सबको इकट्ठा करेगा। आगे अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक बयान फरमाई है कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा फरमाया। जब खुदावंद कुद्दूस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, इन्नी खालिकुम बशरन मिन तीन व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाऊंगा। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। बारी ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से मट्टी जमा करे। हज़रत इज़राइल ने मट्टी जमा की, अपना हाथ मारा तो ज़मीन का सारा ओपरी पर मलकुल मौत के कब्ज़े में आ गया, जिसमें कायनात की ज़मीन का सारा ओपरी पर इस फरिश्ते के हाथ में आ गया। अंदाज़ा लगाओ वो फरिश्ता कितनी बड़ी ताकत का मालिक होगा, और अंदाज़ा लगाओ इस फरिश्ते का पैदा करने वाला अल्लाह कितनी बड़ी ताकत का मालिक है, जो हम सब का माबूद है। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, न उस जैसा उसकी ज़ात में कोई है, न उसके सिफात में कोई शरीक है। लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है, न उसके कोई माँ बाप हैं। तो फिर सारा ओपरी पर फरिश्ते के हाथ में आ गया। बाद रिवायत में है सफ़ा मरवा के दरमियान में या मताफ में ये मट्टी जमा की गई। उस पर 39 दिन गम की मेह बरसी, एक दिन खुशी की मेह बरसी। गोया के ये गारा और ये मादा जो जमा किया गया, उसको जमा करने के बाद 40 दिन तक इसको यूं ही रखा गया, और उसमें 39 दिन गम की मेह बरसी, एक दिन खुशी की मेह बरसी। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मादा इस तौर पर तैयार किया। फिर अल्लाह ताला ने उससे हज़रत आदम को पैदा किया, और उस मादे में वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ताला ने अपनी रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी। इससे मालूम यह हुआ कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराबिन, तुम सब आदम की औलाद हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से पैदा किया, और हमारी असल भी मट्टी ही है। हम मट्टी से आए हैं और मट्टी में चले जाने वाले हैं। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं है, ये आर्जी चीज़ है, ये ख़त्म हो जाने वाली है। हकीकत में पायदार व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान, जो बाकी रहने वाली ज़िंदगी है वह आखिरत की है। ये रोज़े, ये नमाजें, ये थकना, ये मुजाहदे, ये सारे आमाल आखिरत के लिए हैं, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमावे। वल जान्न खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, मालूम ये हुआ
कि इंसान से पहले की मखलूक जिन्नात है। फरमाते हैं कि इंसान से 2000 बरस पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा कर दिए थे, और जब जिन्नात को पैदा किया तो आग के शोले से पैदा किया। और जाहिर बात है आग में रिफात और बुलंदी है, कहीं भी आग सुलगाओ उसके शोले ऊपर को जाते हैं, उसके भड़के ऊपर को उठते हैं, और मट्टी कहीं भी हो वो नीचे को आती है। गोया कि इंसान में नरमी और तवादु है, शैतान की जिबिल्लत के अंदर शरारत और तकब्बुर है। ये फितरत है कि इंसान की तख्लीक जिस मादे से की है उसमें तवादु है। तवादु अल्लाह को बहुत पसंद है। मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो आदमी अल्लाह के लिए दबता है अल्लाह उसको बुलंद फरमाते हैं। तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है। अल किब्रिया उ निदाई फमन नाज़अनी क़समतुहु, तकब्बुर मेरी चादर है, जो उसको ओढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसकी खोपड़ी उखाड़ दूंगा। यह हदीस कुदसी का मजमून है। तवाज़ु इंसान में उसकी जिबिल्लत में अल्लाह ने रखी, तकब्बुर शैतान में उसकी जिबिल्लत में खुदावंद कुद्दूस ने रखा। तो फरिश्ते, चूँकि फरिश्तों को ये हुक्म था कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब बारी ताला ने फरमाया फैदा सव्वैतुहु, जब मैं आदम पैदा कर दूं और उसमें मेरी रूह फूंक दूं तो ये फरिश्तों की जमात तुम सजदे में पड़ जाना। देखिए ये हुक्म साफ साफ तौर पर वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, मैं मट्टी से, मैं गारे कीचड़ से इंसान बनाने वाला हूँ, और जब मैं बराबर बना चुकूँ और उसमें मेरी रूह डाल दूँ तो तुम सजदा कर लेना। ये हुक्म तो फरिश्तों को था। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, कुल्लुहुम ताकीद लाए, अजमाउन मजीद ताकीद इस्तेमाल की, मलाइका जमा का सेगा इस्तेमाल किया। तमाम फरिश्तों ने मिल कर के बैक वक्त इकट्ठा सजदा कर लिया। इबलीस ने सजदा नहीं किया, सजदा करने से इनकार कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि हुक्म तो फरिश्तों को था, इबलीस को तो था नहीं। याद रखिए इबलीस ने बहुत ज़्यादा इबादत की है, ज़मीन भर इबादत करता रहा। फिर जब तरक्की हुई तो फिर अल्लाह ने उसको परवाज़ अता फरमाई और आसमानों में रहने लगा और फरिश्तों के माहौल में रहता था। तो माहौल की वजह से हुक्म में दाखिल हुआ। हकीकत में हुक्म फरिश्तों को था, लेकिन फरिश्तों के माहौल में रहता था, तो इस माहौल की वजह से वो हुक्म में दाखिल हुआ। अच्छा, उसके बाद बारी ताला ने उससे फरमाया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने जवाब ये दिया, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, या इब्लीस मा लका अल्ला तकून मअस साजिदिन, तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो कहा, जिस चीज़ को आपने मिट्टी से बनाया है मैं उसको सजदा नहीं कर सकता। मैं ऊपरी चीज़ हूँ, आग के शोले से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है। ऊपर की चीज़ नीचे की चीज़ को झुक नहीं सकती है, लिहाजा मैं सजदा नहीं करूँगा आदम को। बारी ताला ने फरमाया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, आसमानों में सबसे पहले खुदा की नाफरमानी इबलीस से सादिर हुई, इबलीस ने, और आसमानों में सबसे पहला गुनाह तकब्बुर हुआ। ज़मीन में सबसे पहला गुनाह हसद हुआ। जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबिल और काबिल को जब कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया गया, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, एक की कबूल हुई, एक की कबूल नहीं हुई। जिसकी कुर्बानी मरदूद हो गई वो काबिल था, जब वो मरदूद हुआ तो बदनाम हुआ। उसने अपने सगे भाई को हसद की बुनियाद के ऊपर कत्ल कर दिया। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, फिर वो पशेमान और शर्मिंदा हुआ। अब बारी ताला से उसने कहा कि मैं तो ऊपर की चीज़ हूँ, ये नीचे की चीज़ है। तो जिस अल्लाह ने आग का शोला बनाया और उस मादे को पैदा करके उसको खुदावंद कुद्दूस ने बुलंदी अता फरमाई, वो नहीं जानता था कि आग ऊपर की चीज़ है, लेकिन इस मखलूक का तकब्बुर वाज़े करना था, उसका तकब्बुर वाज़े हो गया। बारी ताला ने फरमाया, फ़खरुज मिनहा फ़इन्नका रजीम, निकल यहाँ से तो मरदूद है। मरदूद महबूब के मजमे में नहीं रह सकता है। मेरे फरिश्ते मेरे महबूब बंदे हैं और तो मलऊन है, मरदूद है,
तो मरदूद का माना बागी होता है। तूने बगावत की, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करके, तूने तकब्बुर किया ऊपर से, तो यहाँ पाक बाज माहौल से और इस मुकद्दस माहौल से यहाँ से निकल जा। वइन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, एक हुक्म ये दिया तो मरदूद है, दूसरा हुक्म ये दिया निकल यहाँ से, और तीसरी बात फरमाई कयामत तक तू मलऊन है, यानी कयामत तक तुझ पर मेरी फिटकार है। यहाँ लानत से मुराद रहमत से दूरी है, तो मलऊन है। तो शैतान आसमानों से निकाला हुआ, शैतान खुदावंद कुद्दूस का सबसे मरदूद तरीन, और शैतान मलऊन है। तीनों चीजें यहाँ फरमाई। देखिए आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों जन्नत में रहते थे। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा। फिर हजरत आदम और हव्वा ने वो शजरा ममनुआ इस्तेमाल कर लिया, तो बारी ताला ने फरमाया इहबतू मिनहा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। यहाँ फरमाया कि तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम में का एक दूसरे का दुश्मन है। अगर मेरी तरफ से हिदायत नामा आ जाए और मेरी हिदायत का इत्तेबा करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से चंद कलीमे हासिल कर ली, और यानी वही कलीमे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। उसके नतीजे में हजरत आदम और हव्वा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, और बारी ताला ने हजरत आदम और हव्वा को बहुत बड़ा इनाम नवाजा। देखिए यहाँ जन्नत से इनको उतारा गया, तो वहाँ फरमाया इहबितू मिनहा जमीआ, और यहाँ इबलीस के बाबत फरमाया फखरुज मिनहा। इससे इताब खुदाबंदी मालूम होता है कि इबलीस पर अल्लाह का इताब नाजिल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हुए। फरमाया व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, कयामत तक तू मलऊन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में आने के बाद 60 बरस तक तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भूल को अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। लेकिन इबलीस ने तकब्बुर किया, बारी ताला ने फरमाया निकल, मरदूद है, कयामत तक तो मलऊन है। लेकिन इबलीस ने क्या कहा, रब्बि अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, ए अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे दे। किस कदर खतरनाक है, मुझे ज़िंदगी दे दे। बारी ताला ने फरमाया जा तुझे मोहलत है, मालूम वक्त तक के दिन तक, यानी कयामत के दिन तक तुझे मोहलत है। अब इबलीस ने कहा आदम की वजह से मैं गुमराह हुआ, यानी आदम की वजह से मैं जलील हुआ, आदम की वजह से मैं रांदाए दरबार हुआ। अब मैं बनी आदम के लिए गुनाह के कामों को मुज़य्यन करूँगा, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, सारे गुनाह मुज़य्यन करूँगा और सारे बनी आदम को गुमराह करूँगा। लउग़वियन्नहुम, लाम ताकीद बानुन ताकीद सकीला इस्तेमाल किया, अजमईन ताकीद लाया, सारे बनी आदम को गुमराह करके रख दूंगा, हाँ मगर तेरे मुखलिस बंदे। तो देखिए इबलीस ने अल्लाह ताला के सामने तकब्बुर करते हुए कहा कि सारी बनी आदम को मैं उनके लिए गुनाह के काम मुज़य्यन करूँगा। कोई भी गुनाह जब इंसान करता है तो शैतान ये करता है, बाद लोग कहते हैं कि शैतान को क्यों बदनाम करते हैं, गुनाह तो इंसान करता है। हकीकत में शैतान, कोई भी इंसान गुनाह करना नहीं चाहता, कोई भी इंसान रोज़ा छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी इंसान नमाज छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी इंसान शराब पीना नहीं चाहता, कोई भी इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता। लेकिन शैतान क्या करता है, उससे झूठ की बुराई को निकाल देता है, उससे शराब की बेहुरमती को, शराब की जो है लानत को, शराब की बुराई को उसके दिल से निकाल देता है। इसी तरह रोज़ा छोड़ने के लिए दाइया पैदा करता है। तो ये सारी मेहनतें यानी मासियत और गुनाह को मुज़य्यन करके शैतान पेश करता है, उससे बुराई को ख़त्म कर देता है, और जब उससे बुराई को ख़त्म कर देता है तो फिर इंसान उसको अच्छा समझता है, फिर अच्छा समझ करके उसको करने लगता है। लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, ज़मीन भर की चीज़ों को मुज़य्यन करके पेश करूँगा, शोवाली करके पेश करूँगा,
गुनाह की मोहब्बत दिल में पैदा करूंगा, गुनाह की नफरत दिल से निकाल दूंगा, फिर तमाम को गुमराह कर दूंगा। हाँ, लेकिन जो तेरे हैं वो मेरे बनने वाले नहीं। बारी ताला ने फरमाया, ये मेरे बंदे, मेरे मुखलिस बंदे ये सिरात मुस्तकिम पर हैं, और मुखलिस बंदे जिस रास्ते पर हैं वो सिरात मुस्तकिम हैं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन, बारी ताला ने फरमाया जो मेरे हैं वो तेरे बनने वाले नहीं। हाँ, लेकिन जिनको तेरी इत्तिबा की आदत पड़ चुकी है, तेरा कहा करने की यानी शैतान की मानते हैं, वो अल्लाह के नहीं हैं, तो उन पर तो तेरा जोर चलेगा। हाँ, जो मेरे हैं उन पर जरा तेरा जोर नहीं चलेगा। ये इबलीस का और बारी ताला के दरमियान के अंदर आपस के अंदर बातचीत हुई, मुहादसा हुआ, उसको खुदावंद कुद्दूस ने यहाँ बयान फरमाया, व इन्न जहन्नम लमवइदुहुम अजमाइन, और फरमाया इबलीस को और सारी इबलीस की औलाद को और इबलीस के मुत्तबईन को मैं जहन्नम से भर दूंगा, यानी पूरी जहन्नम को इनसे भर दूंगा। आगे खुदावंद कुद्दूस ने जहन्नम के बाबत होलनाकी बयान की है। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जहाँ जहन्नम के हालात बयान किए जाते हैं, जन्नत भी आइंदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस सिलसिले में मज़ीद बात यहाँ से शुरू की जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रहमान ताला का मुत्तबे बंदा बनावे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान के इत्तिबा से और शैतान के वसवसों से और शैतानी हरकत से हमारी और पूरी उम्मत की खुदावंद कुद्दूस हिफाजत फरमावे। खुसूसन ये लॉकडाउन का वक्त है, उसमें अपनी इज्जत बचाओ, अपने घरों में सुकून है। खामोखा के लिए इधर उधर निकल करके अपने आप को बेआबरू बनाकर और इस्लाम को बेआबरू बना करके नुकसान में न पहुंचे और नुकसान में न पड़े, खुद भी नुकसान में न पड़े रमज़ान महीने में, और दूसरों को भी रमज़ान महीने के अंदर नुकसान से बचाने की कोशिश करें। सब्र कर लें, शहर सब्र, रमज़ान का महीना सब्र का है, और सब्र सवाबहु अल जन्नह, और सब्र का बदला जन्नत है। थोड़ा वक्त मुश्किल है, कठिन वक्त को निकाल लें, सब्र कर लें, घरों में रहें, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहें। खुदावंद कुद्दूस अपने फजल करम से सब्र अता फरमावे, पूरी उम्मत से, पूरी दुनिया से इस वबाई मर्ज को खुदा ख़त्म फरमा दे। बीमारों को अल्लाह ताला सेहत शिफाए कामिला दाइमा आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमावे, और खुदावंद कुद्दूस हमारे देश में मोहब्बत का माहौल पैदा फरमा दे, नफ़रत को ख़त्म फरमा दे, और अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सब का ईमान पर हुस्न खातिमा नसीब फरमावे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।